Welcome back, boys. Now today we will be starting the graphical representation of the motion, that is plotting of different types of quantities with respect to time. First, let us take the distance time graph for a particle moving with either constant speed or with a variable speed. Now, first type of graph is distance time graph. Time graph. Now we will discuss various types of distance time graphs and their interpretations. Let us take first one. If distance is plotted on y-axis, and time is plotted on x-axis, this is time and this is distance d. Now sometimes it is also represented as position time graph. Position time graph. Then also we plot in the same manner. Now, if this graph is like this, then think how you interpret the graph. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ग्राफ इस तरह है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए. सबसे पहले आप इंटरप्रिटेशन लिखिए एंड देन ट्राई टू गेट द कंक्लूजन. सपोज this is time t1 and this is time t2. So we can see that the distance at two different times is same. That is at t2 it is d, and at, let this distance is d. Now this is the distance at time t2 is d, distance time t1 is d. So change in distance is what? Change in distance is equal to 0, and change in time is what? t2 minus t1, that is delta t. Now if you find the speed from this graph, then what is speed? That is delta d upon delta t, that is 0 by delta t, that is 0. Now when its speed is 0, then you can say that body is in the state of rest at distance d. हमने दोनों को d ले लिया, but this d is for distance and this is let this is d1 actually, d1. Now this is clear. Now this at distance d1, and body remains in the state of rest. That is, for example, if I am standing at a particular distance from the camera, then certainly my location is not changing with respect to time. So I am in the state of rest with respect to that camera at a finite distance from the camera. So this is the indication of that body is in the state of rest. So this was first graph. Now let us take second graph. This is graph B. This is D. This is T. Now if this graph is like this, then what happens? Go to the same method. Let these are two times, that is time t2 and time t1. This is d1 and this is d2. And if you join these 2 points, this is a slope, this is the trend. Now come to this point. Change in distance is what?
For this case, change in distance is d2 minus d1 and change in time is t2 minus t1. Now, if you find the speed in this case, that is delta d by delta t, that is d2 minus d1 upon t2 minus t1. अब अगर ये d2 minus d1 represents what? That is speed is equal to bc upon ab, which is equal to d2 minus d1 upon t2 minus t1. अब फिगर में देखिए, you can see in the figure that this d2 minus d1 is being represented by bc and t2 minus t1 is being represented by ab. So this is speed, and now you can say that if this angle is theta, so we can write tan theta is equal to bc upon ab, which is equal to d2 minus d1 upon t2 minus t1, which is equal to delta d by delta t, which is equal to speed. So we can say that the slope of distance time graph gives what? Speed. In general, we can write the slope of d dash t, distance time dt graph gives speed. तो अगर ग्राफ इस तरह से है तो क्या देता है? स्पीड. और अगर स्लोप कांस्टेंट है, now if the slope is constant for the graph, then we can say the body is moving with constant speed. Body is moving with constant speed. अब स्लोप से हमें पता चला कि स्लोप हमको क्या देता है? स्पीड. वो कहां से क्लियर हुआ? यहां से. अब अगर ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, जो स्लोप इस पार्ट की होगी वही स्लोप इस टोटल पार्ट की होगी. और अगर यहां पर स्लोप हमारी दी जाती है डेल्टा डी बाई डेल्टा टी से, तो हम यहां से यहां तक, यानी पॉइंट ए से इसको पॉइंट डी ले लीजिए, ए से डी तक की अगर हम स्लोप निकालें तो वो स्लोप भी यही होगी जो हम इस पार्ट के लिए निकाल रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. और इट इज द केस ऑफ, also it is the case of uniform motion, that is body is covering equal distances in equal intervals of time. It is covering equal distances in equal intervals of time. So it is said that body is in the state of uniform motion. So this is clear from the graph. तो इस ग्राफ से इतने रिप्रेजेंटेशंस हुए हैं और हम इतने इन्फ्रेंसेस ले सकते हैं. इन्फ्रेंस नंबर 1, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. सेकंड, इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम में फिजिक्स में 30% क्वेश्चंस फिगर बेस्ड होते हैं. सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ. और वो मैं सिक्वेंशियल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं आपको. पहला आपने क्या किया? स्लोप निकाला. स्लोप से क्या पता चला? स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इज कांस्टेंट. अब अगर स्लोप कांस्टेंट हो गई तो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज 0. फॉर अबाउट ए एक्सेलरेशन इज 0. तो इनसे 3-4 इंटरप्रिटेशंस आपके आ गए. नाउ दिस थिंग इज क्लियर. सो once again rewind your video and see in the sequential order. So this was second graph. Now come to third graph.
third graph, let us take third graph like this. It is representing a parabola on y-axis. This is D and this is T. Now, if we take 3 points, this point is P1, this point is P2, and this point is P3. At 3 different times, इसके corresponding time T1 हो गया, इसके corresponding time T2 है, और इसके corresponding time T3. Now, if you want to find out the slope, then what quantity will be given by the slope? वो तो बाद में निकालेंगे, पहले ये देखते हैं किस टाइप का मोशन है. अगर हम यहां देखें तो इतने टाइम में, यहां से यहां तक इतने टाइम में इसका डिस्टेंस इतना इंक्रीज होता है, और अगर हम यहां से यहां तक टाइम में जाएं तो टाइम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया. अगेन इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस सिचुएशन, तो इतने टाइम इंटरवल में ये और बढ़ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड. बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड. क्या मतलब, इसकी स्पीड कंस्टेंटली बढ़ती जा रही है. अब देखिए, अगर इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, और तीसरा टेंजेंट ये हो गया. We draw 3 tangents at this point, and we make 3 triangles. ये ABC हो गया, ये DEF हो गया, this point is DEF, और ये PQR ले लिया. अब आइए देखिए, पहला इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि बॉडी, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, बॉडी इज नॉट मूविंग with constant speed. So it is the case of non-uniform motion. It is the case of non-uniform motion. Third, its speed is constantly increasing. कैसे कह सकते हैं? अब अगर हम यहां पे ये एंगल θ1 ले लें, ये एंगल θ2 ले लेंगे, ये एंगल θ3 ले लेंगे, θ1, θ2 एंड θ3, तो हम ये कह सकते हैं कि tan θ1, tan θ2, tan θ3, अगर तीनों tan की वैल्यू निकाला तो क्या हो गया कि ये tan θ1, क्योंकि θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, सो tan θ1 is less than tan θ2 is less than tan θ3, क्योंकि tan 0 to 90 डिग्री तक क्या हो, 0 to 90 डिग्री वो बढ़ता जाता है. अब अगर tan θ1 is less than tan θ2 is less than tan θ3, और tan θ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और स्लोप इस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड. सो S1 is less than S2 is less than S. Speed at point 1 is less than speed at point 2 is less than speed at point 3. This S refers here as speed.
speed at point 1 is less than speed at point 2, that is P2 is less than speed at point 3. So point 3 has the greatest speed since it has the greatest slope, and slope represents the speed. तो क्या हुआ? We can say that speed of the body is constantly increasing. अब ये इंक्रीज कांस्टेंट है या नहीं? बढ़ रही स्पीड, तो बढ़ने में दो तरीके होते हैं, एक तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है और दूसरा एक नॉन कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है. तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है या नॉन कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, दैट इज change in speed upon change in time. That will give whether body is moving with constant acceleration or it is moving with non-uniform speed. ठीक है? तो जो ये इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये ऑब्टेन किया जा सकता है बाय फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, एंड वी विल आल्सो फाइंड दैट. ओके. Now then, this distance time graph exists in positive quadrants only, because negative distance is not having sense since it is a scalar quantity. But when we come to the displacement time graph, then we see that the displacement of the body is positive also and negative also. The negative concept of the displacement indicates that body is now in the opposite direction. If we have taken one direction from the origin as positive, then the direction just opposite to that will be taken as negative. So, before coming to displacement time graph, we can now, if we take a graph opposite to this graph, now we will see, अगर ग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसा हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो, तो आप देखिए, एनालाइज करिए, इसमें क्या है, जो पॉइंट्स हम लेंगे, टेंजेंट इस साइड आएगा, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होते जा रहे हैं, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द टेंडेंसी ऑफ बीइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस दैट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, यानी tan थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है. आप यहां से एनालाइज कर लीजिए, जैसे इतने टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और अगर इतना ही टाइम इंटरवल हम यहां और ले लें, सो वी कैन सी दैट नाउ फॉर द सेम टाइम इंटरवल द डिस्टेंस d हैज डिक्रीज्ड, यानी उसी टाइम इंटरवल में अब डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है. फिर आगे हमने इतना ही टाइम इंटरवल ले लिया, तो हम देखते हैं कितना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग विथ टाइम. So we can say that the speed of the body is continuously decreasing. और वो यहां से भी क्लियर हो सकता है, जैसे पॉइंट P1 लिया, यहाँ पे पॉइंट P2 लिया और यहाँ पॉइंट P3 लिया. अगर हम 3 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, we draw 3 tangents, then we can see that theta, if this is theta 1, theta 2 and theta 3, तो क्या हुआ, एंगल यहां सबसे ज्यादा है एक्स एक्सिस से, उसके बाद कम हो गया, फिर उसके बाद और कम हो गया. तो जैसे जैसे एंगल कम होता जा रहा है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज डिक्रीजिंग, इट मींस द स्लोप ऑफ बॉडी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, और यू कैन से दैट इट इज अ डीएक्सेलेरेटेड मोशन. It is a deaccelerated motion, means the speed or the velocity is continuously decreasing. अब इस ग्राफ का सीक्वेंस देखिए,
इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, स्पीड इज डिक्रीजिंग सिंस slope of the graph is decreasing. Since slope of the graph is decreasing. Okay. Now, if slope of the graph is decreasing, then it means that speed of the body is continuously decreasing. अब फिर वही केस आता है. अब ये डिक्रीज यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट डिक्रीज है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सेलरेशन. सेकंड, आफ्टर सम टाइम्स अगर इसी ग्राफ को हम ऐसे बढ़ा दें और ये बाद में पैरेलल हो जाए. आप ध्यान दीजिए कि क्लास 9th में एक ग्राफ ऐसा था, आगे ऐसे कर दिया गया था, तो क्या हुआ? उसके बाद ये बॉडी रुक गई क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इस ग्राफ का. हमारे पास बॉल है, क्रिकेट सभी लोग खेलते होंगे ऑलमोस्ट. आपने क्रिकेट बॉल को ग्राउंड पे रोल कर दिया, तो जब हमने रोल किया देन इट्स वेलोसिटी वाज मैक्सिमम और स्पीड द मैक्सिमम. उसके बाद जब ग्राउंड पे रोल कर रही है बॉल, ए फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल एंड इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग. अब जो स्पीड डिक्रीज कर रही है तो किसी का थ्रो जो है 10 मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है, 50 मीटर जाता है, 100 मीटर जाता है, पर 100 मीटर जाने के बाद क्या हुआ? बॉल रुक गई. नाउ इफ द बॉल हैज स्टॉप्ड एंड टाइम इज पासिंग, देन यू कैन से दैट the graph, nature of the graph is like this, that body has stopped at this point. Time is increasing continuously, but the distance is not increasing. So we can say that the body has come in the state of rest after a certain interval of time. And initially what was happening, its speed was constantly decreasing. इसकी speed कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही थी. क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. अब इसी ग्राफ को देखिए, इंटरप्रिटेशन ग्राफ का होता है इंपॉर्टेंट. आप इसी ग्राफ को यानी हम नेक्स्ट लेते हैं. अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, मतलब हर जितने भी ग्राफ हमने लिए वो सारे ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर दिए. जैसे मान लीजिए इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये डिस्टेंस है, ये t है, तो और ये डिस्टेंस हमने मान लिया d1 है, ये टाइम t है, ये डिस्टेंस t. अब क्या होगा कि हमने जो मेजर किया t इज इक्वल टू 0, अगर इस पॉइंट का, लेट दिस पॉइंट इज a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखें तो क्या होगा? 0, d1 टाइम यानी x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर d1. अगर इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हम लिखें तो क्या होगा? 0, d1. इसका मतलब क्या हुआ? मोशन कहां से स्टार्ट हुआ? मोशन हैज स्टार्टेड व्हेन इनिशियली द बॉडी वाज एट द डिस्टेंस d1. वो पहले से ही डिस्टेंस d1 पर थी, और जब पहले से डिस्टेंस d1 पर थी तो उस किस स्टेट में थी? रेस्ट में थी. देन वी कैन से दैट इनिशियली बॉडी वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एट a distance d1 and thereafter it was moving with the increasing speed. इंक्रीजिंग स्पीड कैसे क्या हुआ कि यहां अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें उसकी स्लोप कम होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें उसकी स्लोप ज्यादा होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें उसकी स्लोप और ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन, जितने भी ग्राफ हमने ड्रॉ किए उसको आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ वही होगा कि इनिशियली बॉडी वाज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एट दिस डिस्टेंस. और जो हमने पहले यहां से ग्राफ लिया, वी हैव टेकन द ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन, इट मींस एट t is equal to 0
अगर ओ का कोऑर्डिनेट हम लिखें तो क्या होगा 0,0, ओरिजिन हुई ना ओ, ओरिजिन पर डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 है और टाइम भी 0, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ओ वाज व्हाट 0,0। अब जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक बता दें कि टेंजेंट क्या होता है, कैसे ड्रा करते हैं, किसी का टेंजेंट क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या देगा, वो हम आपको जनरली डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ है, हम नहीं जानते कि ये एक्सिस क्या है और ये एक्सिस क्या है, हमें नहीं पता है। अब देखिए मान लीजिए हमने ये पॉइंट P लिया, सॉरी पॉइंट P लिया, इस पॉइंट P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हुआ, ये हमने 3 पॉइंट लिए ABC, ये एंगल थीटा होगा। अब जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन विच जस्ट टचेज द कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट लाइन इज सेड टू बी द टेंजेंट एट पॉइंट P, दैट लाइन इज सेड टू बी द टेंजेंट एट पॉइंट P। नाउ इफ यू फाइंड स्लोप is equal to tan theta, which is equal to BC upon AB. ये यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल, आप किसी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी के लिए कर सकते हैं, यानी कि स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। अब देखिए, अब ये क्या देगा, क्या देने के लिए उसके बाद आप आइए कि ये क्वांटिटी क्या है, यानी इस एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है, और इसके करेस्पॉन्डिंग यहां आइए। अगर हम इसे मान लेते हैं डेल्टा वाई है और इसे मान लेते हैं डेल्टा एक्स, तो क्या हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये मैं यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं कैसे हम निकालते हैं किसी की स्लोप क्या देगी हमें, ठीक है। अब ये डेल्टा वाई हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। अब देखिए यहां पे अगर डेल्टा वाई, मतलब हम ये मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा वाई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो गया यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देगा स्पीड। तो अगर डेल्टा वाई को हमने डिस्टेंस ले लिया, डेल्टा एक्स को हमने टाइम ले लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड दे देगा। इसी को अगर हम ये कहें कि यहां हमने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है और यहां पर टाइम प्लॉट किया है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी दे देगा। इसी ग्राफ में हम कहें कि अगर हमने यहां पर वेलोसिटी प्लॉट किया है और यहां टाइम प्लॉट किया है, then velocity upon time is what? Acceleration. So this is the basic method to find what does the slope of a particular graph represents. The slope of a particular graph represents. अब देखिए हमने कैसे क्वांटिटीज को चेंज किया, और क्वांटिटी चेंज कहां हो रही है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। जब यहां डिस्टेंस था यहां टाइम था, स्पीड मिली। जब यहां डिस्प्लेसमेंट था यहां टाइम था, वेलोसिटी मिली। जब यहां पर वेलोसिटी है यहां टाइम है, एक्सेलरेशन मिली। Okay, so this is the basic thing what we can find from the slope of the particular graph. Now this was basically the representation of distance time graph and interpretation from the slope of the graph. Slope क्या represent करता है आप इसे देख लीजिएगा, इसे जरूर बताइए। और पहले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के टर्म में लिखिए, फिर देखिए डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में, डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डेल्टा वाई। फिर उसको बाय डेफिनेशन कोरिलेट करिए कि जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड होता है,
है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है. सो दिस इज द वे हाउ वी इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ. Clear? So this is a very important thing, and this is generalized thing which you can use in every graph. Okay. Now our next graph is displacement time graph. That is second one is displacement time graph. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब देखिए जितने भी केसेस होते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. सो ऑल द टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर सिमिलर टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. जब भी एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. नाउ लेट अस टेक दिस इज वन फर्स्ट ग्राफ in the similar manner. Let this is a horizontal line. Second graph, this is a graph like this. Third graph like this. Fourth graph like this. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमने प्लॉट किया, यहाँ टाइम प्लॉट किया, अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम. कहीं कहीं इसको एक्स से प्लॉट करते हैं, पोजीशन हम देते हैं. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम. सॉरी दिस इज displacement. Okay. Now in first graph, the body is in the state of rest because displacement is constant, and we can say this is the condition for the rest. ये particular इसका displacement क्या है? जैसे मैं यहाँ से डिस्प्लेस हुआ 5 मीटर्स उस डायरेक्शन में, और वहाँ जाके मैं रेस्ट में आ गया. ओके. नाउ so it is in the state of rest. In state of rest. Second, in moving with constant velocity. अब constant velocity से क्यों कहा हमने? अगर इसकी हम स्लोप ड्रा करें, अभी वहां जो लिखा था हमने, स्लोप ड्रा करें, तो वी कैन से दैट स्लोप इज कांस्टेंट. अगर स्लोप कांस्टेंट है, देन व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट्स? यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. सो बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. और इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. क्योंकि आपने पढ़ा है व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज 0. नाउ कम टू दिस ग्राफ. यहां क्या दिख रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट है, टाइम t है. अब इसका इट्स मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसमें क्या होगा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी. अब यहां पर अगर हम देख लें, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और उस टेंजेंट की स्लोप क्या देगा? ये दिस इज B, दिस इज C, दिस एंगल थीटा, दिस इज BC, दिस इज AB. BC रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एंड AB रिप्रेजेंट्स टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी. अब जब इनके हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है,
तो क्या होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट अलग, ये वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, क्योंकि इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट है और इस एक्सिस पे टाइम प्लॉट है। क्लियर? अब ये जब वेलोसिटी देगा तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, और यहां पे क्या हुआ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सीलरेशन स्टेट, यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और इसको क्या कह सकते हैं, डी एक्सीलरेशन स्टेट, यानी velocity is constantly decreasing. Now, if we take a graph like this, तो ये तो अभी जनरल ग्राफ वही थे, जो डिफरेंस ग्राफ का आ रहा है वो मैं बता रहा हूं। लेट ए बी सी डी, मान लो एक ग्राफ ई हमने लिया, ऐसे लिया, ऐसे ग्राफ ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये टाइम हो। अब क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट एट दिस इज ओरिजिन हो, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट रेट, यानी बॉडी इज रिटर्निंग बैक, body is returning back to its initial position, returning back to its initial position. Let this point is A and this point is B, and at time OB, it crosses, it reaches to origin, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये इधर शिफ्ट होती जा रही है, और ओबी टाइम पर ये ओरिजिन पे पहुंच जाती है। जब ओरिजिन पे पहुंच गई, अगर मान लीजिए इसे रेस्ट पे आना है तो रेस्ट में आना है, नहीं तो इसके बाद मान लीजिए अगर ये मूव करती है तो क्या हुआ, अब यही इसका जो है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होता जाएगा, यानी टाइम बढ़ रहा है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इस वाले ग्राफ का जो इंटरप्रिटेशन होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन, नाउ इस वाले ये ऊपर हो गया, ऊपर का इंटरप्रिटेशन हो गया, नीचे का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इट इज नाउ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अब यहां से यहां आई, ओरिजिन पे आई, ओरिजिन से क्रॉस कर गई। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लीजिए मैं ओरिजिन हूं, यहां से कोई आ रहा है, उस तरफ से मेरे पास कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने आ रहा है, यहां आया, यहां से उधर चला गया। अगर वो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो डेफिनेटली डायरेक्शन ऑन द राइट साइड इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब जब डायरेक्शन ऑन राइट साइड इज टेकन टू बी नेगेटिव, नाउ इफ द पर्सन इज कमिंग टू मी, देन certainly its displacement from me is constantly decreasing, और जब मुझ पर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और जब राइट साइड को चल दिया तो क्या हुआ, अब इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द ओरिजिन के दोनों तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अगर एक तरफ पॉजिटिव आपने कंसीडर किया है तो दूसरी तरफ आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल बी स्टार्टिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक यू।